Hello students and my dear friends. Today we are going to tell you about demand. So what is demand? In a definite period of time, in a definite price of a commodity, if a consumer willing to buy a commodity and he is able to pay it, then it is known as a demand. So first of all, we are going to tell you about that demand, or law of demand, and elasticity of demand. These are totally different concepts. We always misconcept these things: demand, law of demand and law of elasticity. हम देखते हैं कि डिमांड शब्द हमारे सम्मुख आता है, इसके अलावा लॉ ऑफ डिमांड आता है, इसके बाद लॉ ऑफ इलास्टिसिटी आता है। इस वाले वीडियो में केवल हम डिमांड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत कई विषय और उपविषय आएंगे, जिसमें फंक्शन ऑफ डिमांड होगा, इंडिविजुअल फंक्शन ऑफ डिमांड होगा, मार्केट डिमांड होगा और टेबुलेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड होगा, टेबुलेशन ऑफ मार्केट डिमांड होगा और द फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड होगा। और इस तरह से हम और डिमांड के कई कंसेप्ट हैं जो डिमांड से जुड़े रहते हैं, वे भी सब होंगे इसमें। तो वी आर गोइंग टू understand demands only here and the different topic concerning only the demand. We are not going to understand the law of demand and law of elasticity. These are the totally different subject and they have also the different subtopic also. So here we are going to understand demand only. In a definite period of time, in a definite price of a commodity, if a consumer willing to buy a commodity and he is able to pay it, then it is known as demand. What is demand? It is clearly different from law of demand and law of elasticity. So you only understand demand in general life. We says, what is your demand? What you demanded? So it is a very common word, demand. So we have to define it in our words. What we understand, how we explain demand concerning economics subject. So we try to explain it. You must have definite period of time. If you are going to illustrate demand, you must have a definite period of a time. And you must have a definite price of a commodity. A consumer must be willing to buy a commodity. He is very keen, must be keen interested to buy a commodity, and he must have resources to pay it. He must have resources to pay it. So that is demand. So now we see here, it is must in a definite period of time. It is very necessary in a definite price of a commodity. It is also very necessary if a consumer willing to buy a commodity. Consumer must have to will to buy a commodity and he must be able to pay it. Then it is known as demand. How the J.S. Mill describe the word demand? He said the word demand means deals with that quantity which is purchased in definite price of a commodity. तो मिल कहते हैं कि जो ये डिमांड शब्द है, यह वह खरीदी जाने वाली मात्रा है जो कि एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। तो अब हम आते हैं
कि इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे, तत्व क्या थे परिभाषा में। जो हमने ये परिभाषाएं पढ़ी, ये जो बताया डिमांड के बारे में, और जेएस मिल ने जो भी बताया, इसमें मुख्य तत्व क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या निकल के आई। हम कैरेक्टरिस्टिक कहें या एसेंशियल एलिमेंट कहें, तो ये क्या निकल के आए। आपने देखा कि एक निश्चित समय तो जरूरी है, फिर आपने देखा एक निश्चित कीमत भी चाहिए, फिर आपने देखा कि एक उपभोक्ता की इच्छा भी दिखती हुई होनी चाहिए कि उसकी बहुत तीव्र इच्छा है किसी वस्तु को खरीदने की, फिर आपने देखा कि उसके पास रिसोर्स है, उसके पास संसाधन है जिससे कि वह उसका भुगतान कर पाए, और यह सब इसके मुख्य तत्व बन जाएंगे या कैरेक्टरिस्टिक भी बन सकती है। सो द डिमांड मस्ट इंक्लूड these 5 essential elements: willing of a commodity, second one is enough resources to buy a commodity, third one is eagerness for expenditure, उसने तत्पर होना चाहिए, ईगरनेस होनी चाहिए उसमें व्यय करने की, डेफिनेट प्राइस and definite period of time. These are the 5 essential elements concerning demand. Now here it is the function of demand. There are different function of demand or factor that influencing demand. Now first of all, it is a concept concerning demand. So there is no link between law of demand and law of elasticity. We are purely understanding the demand and its different concepts. So first is function of demand or factor that influencing demand. If we explain the function of demand, it is very simple. There are two things which have interrelationship between them. What are they? The two things are demand of a commodity and the things which affect the demand. So there are only two things, demands of a commodity, the other one is the factor affect the demand. So the interrelationship between these two things is be known as function of demand. तो ये तो आसान सा है कि फंक्शनल डिमांड क्या है, फंक्शनल ऑफ डिमांड या फंक्शन ऑफ डिमांड क्या है, बड़ा आसान है। केवल आपने याद रखना है कि यह अंतर संबंध है दो चीजों के बीच में। क्या क्या है वो चीज? एक डिमांड है, जो डिमांड वस्तु की जो हम मांग कर रहे हैं वे है, और दूसरी चीज जो मांग को प्रभावित करते हैं वे। ये दो चीजें हैं, इनके बीच में जो अंतर संबंध को जो बताता है या प्रभावित कैसे करता है, जो बताने वाली चीज है, वही फंक्शन ऑफ डिमांड कहलाती है। तो सो द फंक्शन ऑफ डिमांड और फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, सो वी विल एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ डिमांड. Functional relationship between demand of a commodity and function that affect the commodity demand is called function of demand. So there are two factors. First is demand, the other is a function that affect the demand. Their interrelationship, their relationship is called the function of demand. So first of all, we divide the function of demand in two types. First is individual function of demand, the other one is market function of demand. So here in individual function of demand, the same thing we include here also, but concerning individual units. And here the same definition we apply here in market function of demand, but the difference is it is concerning the whole or the market. So we will try to explain it. Individual function of demand. So there are two things. First is one individual. The second one is function that affect the demand. Their interrelationship, their relationship is be known as individual function of demand. So let us try to define it. Functional relationship between a one individual of a commodity and function that affect the demand is called individual function of demand.
and it is the formula for this for individual function of demand is dx is equal to px py y t. So what are they? dx denoted to function of demand of individual. dx is function of demand. dx is function of demand, and what is here? It is price of a commodity. Px means price of a commodity, py means price of another commodity, y means income, t means taste. So the demand function is, the different factors are these, and the one concept is these, the factor affecting demand, and other is demand. So the relationship between these are be known as function of demand. Now we explain market function of demand. So the two different concept is market demand, the demand of different consumers, A consumer, B consumer, C consumer, and all the consumers of market. And the second one is function that affect the demand. So the relationship between these two are known as the market demand function of market function of demand. So let us see here the definition of market function of demand. Functional relationship between a market demand of a commodity and function that affect the demand is called individual function of demand. Now it is not a individual function of demand, it must be market function of demand. It is written incorrectly. So for this individual we use market function of demand. So now the formula for it, market function of demand, is dx is equal to px py y t e p y d. So what is dx? dx क्या है? dx है function of demand. It is influenced by px, price of a commodity, price of another commodity, y income, same thing as in we use in individual income, and the fourth one is taste. Now we pick a different word, e. E means expectation. If let's suppose if a price goes high in future, so we buy a thing in a present time, and if the price is going down later in future, we will purchase the things we will not purchase a thing in a present time, we will purchase in future. Next one is P for population. The population, as we know, must affect the its demand, because where we found the more population, the demand is increases, and where the population is less, the demand is not in its peak. So the next one is YD. YD means distribution of income. Distribution of income also affect the demands of a commodity. So what we see here, यहाँ पे हमने देखा कि जब हम फंक्शन ऑफ डिमांड को दो भागों में बांटते हैं, इंडिविजुअल फंक्शन ऑफ डिमांड और मार्केट फंक्शन ऑफ डिमांड, तो हम इसको समझाते हुए चलें कि यहाँ पे दो चीजें आएंगी. पहली आएगी कि इंडिविजुअल डिमांड, ये एक व्यक्ति मांग रहा है, और साथ में दूसरी चीज आएगी कि जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, फैक्टर हैं डिमांड को, जो फैक्टर जो प्रभावित करते हैं, अफेक्ट प्रभावित करते हैं डिमांड को, उन दोनों के बीच में मध्य में जो संबंध है वह इंडिविजुअल फंक्शन ऑफ डिमांड कहलाएगा. तो यहां पे केवल
फंक्शन ऑफ मतलब यहाँ डिमांड नहीं लेनी, बल्कि एक व्यक्ति की डिमांड लेनी है, एक व्यक्ति की डिमांड और उसके साथ जो कारक प्रभावित करते हैं या फंक्शन जो प्रभावित करते हैं मांग को, उनके बीच के संबंध को हम कहेंगे इंडिविजुअल फंक्शन ऑफ डिमांड। Functional relationship between a one individual demand of a commodity and function that affect the demand is called individual function of demand। तो सीधी सी बात है, इनके बीच में एक व्यक्तिगत जो उपभोक्ता है उसकी जो मांग है उसके और जो उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बीच में जो अंतर संबंध है, उनके बीच में जो संबंध है को दिखलाने वाला क्या कहलाता है, इंडिविजुअल फंक्शन ऑफ डिमांड कहलाता है। इसको हम सूत्र रूप में रखना चाहें तो dx जो है बराबर है, यहां पे आ जाएगा इतनी चीजें प्रभावित कर रही हैं इस चीज को, px माने उस वस्तु की कीमत, py माने उसी दूसरे वस्तु की कीमत, जैसे चाय कॉफी होती हैं तो चाय की कीमत और कॉफी की कीमत, और यहाँ पे y है, y दिया हुआ है, इसका मतलब आय, व्यक्ति की आय कितनी है वो भी प्रभावित करती है उसकी मांग को, और टेस्ट उसकी अभिरुचि क्या है, फैशन क्या है, रीति रिवाज क्या है, उसके हिसाब से उसकी मांग प्रभावित होती है। ये प्रभावित करने वाले कारक थे जिसके साथ उसकी मांग प्रभावित होती है। तो एक व्यक्तिगत व्यक्ति की मांग और उसको प्रभावित करने वाले कारक के बीच में जो संबंध है उसको dx कहते हैं, फंक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। अब हम यहाँ पढ़ते हैं बाजार मांग फलन क्या है या मार्केट फंक्शन ऑफ डिमांड क्या है। ये क्या होगा, इसमें जो एक व्यक्ति की बजाय अब हम इस्तेमाल करेंगे बाजार की मांग। एक उपभोक्ता हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। हम दिखलाने के लिए तो क्या करते हैं, जब इसको तालिका या रेखा चित्र से समझाएंगे तो हम सारे उपभोक्ता बाजार के तो नहीं दिखा सकते, हम केवल क्या करते हैं ए बी सी कुछ उपभोक्ता को दिखा के अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे इसको समझाते हैं क्या, बाजार मांग, और यहाँ पे दूसरा जो चीज है प्रभावित करने वाले कारक, इनके बीच में जो संबंध है वही मार्केट, ये गलती से इंडिविजुअल लिख दिया गया है यहाँ पे मार्केट आएगा शब्द। तो इसको हम अब कहेंगे बाजार मांग वह मांग है जिसमें कि जो बाजार मांग है किसी वस्तु की और उसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बीच के अंतर संबंध को, उनके बीच के संबंध को हम मार्केट फंक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। ये इंडिविजुअल को मार्केट कर लेंगे हम शब्द को निश्चित तौर पर। अब सूत्र देखते हैं, dx इजिकल टू पी एक्स पी वाई वाई टी ई पी वाई डी। तो अब हम समझते हैं मांग किससे प्रभावित हो रही है, फंक्शन ऑफ डिमांड क्या है मार्केट में। इसमें पी एक्स उस वस्तु की कीमत, अन्य वस्तु की कीमत जैसे चाय और दूसरी कॉफी हो गई, तो इसकी कीमत क्या है, वाई क्या है, आय, व्यक्ति की आय क्या है, उपभोक्ता की आय क्या है। फिर पढ़ते हैं हम टेस्ट, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टेस्ट, अभिरुचि, फैशन क्या है जिससे मांग प्रभावित होती है। एक्सपेक्टेशन देखते हैं कि भाई प्रत्याशा क्या है, संभावना क्या है भविष्य में, अगर भविष्य में कीमत कम होगी तो आज उपभोक्ता कम खरीदेगा, भविष्य में खरीदेगा। भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना है तो व्यक्ति आज ही स्टॉक कर लेगा वस्तुओं का। सो द नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन, पी से पॉपुलेशन, तो जनसंख्या भी प्रभावित करती है। जहां ज्यादा जनसंख्या होगी वहां बिक्री ज्यादा होगी, और जहां जनसंख्या कम होगी वहां बिक्री कम होगी। वाई डी, आय का वितरण भी प्रभावित करता है। आय मध्यम वर्ग के पास ज्यादा है तो मध्यम वर्ग वाली वस्तु ज्यादा बिकेगी, उच्च वर्ग के पास ज्यादा है तो उच्च वर्ग वाली वस्तु ज्यादा बिकेगी। तो इस तरह से ये मांग को प्रभावित करते हैं। अब हम आगे के विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे। अब हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन यूज्ड इन फॉर्मूला। हमने जो शब्द इस्तेमाल किए इसमें, तो वह उनका क्या डिफरेंट मीनिंग बनता है उनको समझते हैं। यहाँ पे इलस्ट्रेट किया, ये क्वेश्चन के रूप में भी आपको आ जाता है परीक्षा में कि पी एक्स क्या है, पी वाई क्या है, या यही क्या कारण है जो आपने यहाँ देख रहे हैं, यही आगे एक क्वेश्चन आएगा कि द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ डिमांड, मांग को प्रभावित करने वाले फैक्टर क्या है, कारक क्या है। तो ये सब आप पॉइंट लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने सारे पॉइंट आप वहां बता सकते हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। नाउ इलस्ट्रेट द डिफरेंट एब्रिविएशन यूज्ड इन फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल इज dx, dx मीन्स डिमांड, फंक्शन ऑफ डिमांड। px मीन्स प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, py मीन्स प्राइस ऑफ ए सब्सटीट्यूट कमोडिटी, y मीन्स मॉनेटरी इनकम, T माने
T means taste and fashion. E means expectancy of changes in prices of a commodity. The P1 is P means size of population. YD means distribution of income. Now the we studies tabulation of individual function of demand. So we will explain the individual function. Let us hear the different prices 2, 4, 6, 8, 10. And in these different prices, the quantity demanded, as you know, the simple known thing is in less price we demanded more. So here we saw it, it is written wrong, so we will correct it. Instead of 1 here 1, it is must be 8, 6, 4, 4, 2, and we will explain it as if the price is 2, then it must be 8. So it is written wrong here in this tabulation. You must correct it. Against 2 it must be 8, against 4 it must be 6, against 6 it is 6, and against 8 it must be 4, against 10 it must be 1. So this is against 8 it is 3, against 10 it must be 1. So please correct this tabulation. And what we express in tabulation, we will explain the individual demand curve in a curve, demand curve. So here it is your price and here it is demand of commodity. If you draw it in, let us see the price is 2. So what you are demanded, you must demand 8 commodity demanded by a consumer. So we will match them, 2 match with 8. So we will draw here a point, and again against a 4 there is 6. So you will match both of them, 4 and here your quantity is 6. It match here 4 and 6, and in 6 it is only 4. So in 6 pricing you will match it with 4 price. So after that in 8 price you will match them with 3. In 8 price you will match it with 3. So the demand is here, and for a price of 10 you will match it with 1. So the price is 1 and your demand is 1. So after that you join this point and it will make a DD demand curve. So please you must correct it, and against 2 it must be written as 8, against 4 it must be written as 6, against 6 it is must be written as 4, against 8 it must be written as 3, and against 10 it must be written as 1. Now we will see here the market demand. The market demand, it's a tabulation and graph. We are going to understand it. This tabulation is perfectly made. So you will see here the price is 2, 4, 6, 8 and 10. And the consumer is 8, 6, 4, 3, 1. It demanding in this price, the consumer demand is 8, 6, 4, 3, 1. And the consumer demanding in this price 2, 4, 6, 8, 10, he is demanding these demands of a commodity 6, 5, 4, 3, 1. And the C consumer demanding in this price like that 10, 8, 6, 4, 2. These are the different consumers of the economy. So they demanded in two price, the different they have different demand 8, 6 and 10. If we add these such as other consumer also, DE, the whole consumer of an economy, and if we add
the demands of all these consumer in price 2, that will provide you the total market demand. But here it is a it is necessary, we will explain you these all. We should not include all the consumer here, we are explain it the market demand with a few consumers, a b c, one two or three, more than two. We here take the three consumer here, consumer A, consumer B, consumer C, and if we add it 8 6 plus 10, that will provide you the total market demand. 8 plus 6 14, and 14 plus 10 24. 6 5 and 8 is becomes 19. The total market demand of the three consumers are 19, but you must include the whole consumer. 4 plus 4 plus 6 14, 3 3 4 10, 1 1 1 2 4. So simply in these prices the demand of a market demand is 24. In two pricing the total market demand is for 24. In price 4 the total demand of market is 19. In price of 6 the total demand is 14. In price level of 8 the total demand is 10. In price of 10 the total demand is 4. So what we saw here, what we see here, the total demand of a market is very high. So now we are going to explain it with a curve. There are different prices, we must opt a price in demand and all the subject concerning demand and all the subject concerning price, we must write the price in y-axis, and the market demand or supply here it in x-axis. Here it is 0, and the different what we see here, the different demand. Now the maximum demand is total demand is 24. So we have to take a 1 unit of x-axis is 3, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 and 30, and in x-axis the maximum price is 10. So it is easy to take it as 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. And now we are going to match them in price 2. In price 2 the total market demand is 24. First of all we will take 2 and we match it with 24. 24 here we make a point here, and the next 4 we match the price 4 with 9 demand 19. Here we will able to match it and make a point here, and after that 6, in price 6 we demand the 14 demand, here it will make it a point here, and in 8 we will demanded the total market demand is 8. The in price 8 we will match it with 10. The next one is in demand, in price of demand is 10, we will demand market demand is 4. So we will match it and make a DD graph of total demand, market demand, total market demand. यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ की हमारी तालिका बिल्कुल सही है। पिछली जो तालिका इंडिविजुअल मार्केट के लिए थी वो थोड़ा सा गलत हो गई थी। गलत क्या, पूरा ही गलत है, तो कृपया करके उसमें सुधार अवश्य कर लें जैसा मैंने बताया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट डिमांड जो है इसमें कीमत दी है 2, 4, 6, 8, 10, ये परफेक्टली सही बनी हुई है तालिका। यहाँ पे हम देखते हैं कंज्यूमर ए बी सी, हमने तो 3 ही लिए हैं, आप 2 भी ले सकते थे कंज्यूमर। अब यह है कि हम पूरे बाजार के सारे कंज्यूमर तो यहाँ दिखा नहीं सकते, हम अर्थशास्त्र में समझाने के लिए यहाँ पे केवल 3 कंज्यूमर लेके चल रहे हैं, और वह विभिन्न कीमतों 2, 4, 6, 8, 10 में क्या क्या अपनी मांग रखते हैं वे देखते हैं जरा। अब एक कंज्यूमर तो हर कीमत पर 2 पर 8 मांग रहा है, 4 पर 6, 6 पर 4 मांग रहा है, 3 पर 1 पर। अब कंज्यूमर ए का रिलेशनशिप आपने देख लिया। अब इसी प्राइस पर कंज्यूमर बी क्या मांगता है, 2 पर 6 मांग रहा है, 4 पर 5, 6 कीमत पर 4 और 8 कीमत पर 3
और 10 कीमत पर एक वस्तु मांग रहा है। और कंज्यूमर सी एक और उपभोक्ता है, वो क्या मांगता है, 2 कीमत पर 10 वस्तु मांगता है, 4 पर 8 मांगता है, 6 पर 6 मांगता है, 8 पर 4 मांगता है, और अगर कीमत 10 हो जाए तो वह 2 वस्तु मांग रहा है। तो अब हम देखते हैं, ये तो हमने कंज्यूमर लिए थे, अब इनका हम क्या कर देते हैं, जोड़। अब बजा देते हैं बाजार मांग क्या है, टोटल बाजार मांग क्या है। तीनों कंज्यूमर ने जितनी मांग मांगी है, ये तो प्राइस थे, यहाँ पे मांग क्या मांगी, 8 6 14 10 24, 6 5 11 8 19, 4 + 4 8 6 14, 3 3 9 4, मतलब यहाँ 3 3 6 और 4 10, 1 1 2 और 2 4, ये हमारी विभिन्न मांगे हो गई जो हम क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं। इस कीमत 2 पर बाजार की टोटल मांग 24 है, 4 कीमत पर बाजार की कुल मांग 19 है, 6 कीमत पर बाजार की कुल मांग 14 है, 8 कीमत पर बाजार की 10 है, 10 कीमत पर बाजार की कुल मांग 4 है। अब इसे हम प्रदर्शित करते हैं टोटल डिमांड कर्व पर। अब क्या है वास्तव में, यहाँ पे टोटल डिमांड एक्स एक्सिस ये है, हम चारों ग्राफ के सारे एक्सिस तो नहीं ले रहे हैं, माइनस वाई नहीं ले रहे हैं और यहाँ पे माइनस एक्स नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे एक्सिस में 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस लिया है। तो हमने क्या किया, सबसे बड़ी वैल्यू देखी एक्स एक्सिस को बताने के लिए, यहाँ पे मांग हमारी 24 है। अगर हमारी मांग होती 7 तक तो हम 1 2 3 4 इस डिफरेंट जो बराबर पैमाने लिए हैं, बराबर स्केल के जो हमने खींचे हैं, उसमें हम 1 2 3 4 5 6 7 दिखा देते, बड़ा आसान होता। लेकिन अब स्केल 24 है, अगर हम यहाँ 1 2 3 लिखाएं तो ये काफी आगे तक चला जाएगा, जो कि हमारे कर्व में पन्ने में जगह नहीं होगी उपलब्ध। तो हम क्या करेंगे, इसके विभाजन कर लेंगे। स्केल को हमने यहाँ पे 4 मानते तो ये जाता 4 6 6 स्केल तक जाता, हमने 3 मांगा तो ये जाएगा 3 6 9 12, बराबर डिफरेंस 3 है, तो उसके जितने भी फैक्टर हैं वो लिख दो, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 तक काफी है, इतने फैक्टर लिखने, 30 तक लिख लेते हैं। तो इतने हमने इसको किस लिए, कि हमारी निश्चित जगह में जो हमारा कर्व बन सके, इसके लिए हमने स्केल का विभाजन इस प्रकार कर लिया। और दूसरी तरफ जहां हमने कीमत दिखानी है, यहाँ तो 10 ही स्केल आने हैं, तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले लिए। अगर कीमत ज्यादा होती, या इसको हम ऐसे भी दिखा सकते 2 4 6 8 10, यहीं तक आ जाता आपका ये प्राइस, तो ग्राफ उतना लुक अच्छा नहीं आता, तो हमने यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक दिखा लिया। तो इस तरह से आप कभी भी रेखा चित्र बनाएंगे, कोई से भी चित्र। और ये जरूर ध्यान दें कि प्राइस, जब भी आप बाजार या मांग से संबंधित कोई भी आप कर्व पढ़ेंगे, तो प्राइस हर समय मांग क्या सप्लाई, जितना भी आप मांग सप्लाई जितनी भी चीज पढ़ेंगे, प्राइस हर समय यहीं आएगा वाई एक्सिस में, और जो मांग मात्रा या पूर्ति मात्रा ये यहाँ पे आएंगी। तो ये आपने समझना है, जरूरी रूप से याद कर लेना है। तो हमने यहाँ पे प्राइस दिखाई, इनको मिलाया, तो ये प्राइस को जैसे 2 प्राइस है, एक चीज मतलब 2 प्राइस है, 24 मांग है, तो मांग तो हमारी यहाँ है, ये 24 में देखिए, और ये कीमत 2 है, यहाँ मिल गई, बिंदु बना लिया। ऐसे ही फिर 4 कीमत पर 19 मांग, 4 कीमत यहाँ पे है, 19 मांग यहाँ पे मांगी गई है, यहाँ मिल गया, ये एक बिंदु और बना लो। ऐसे ही सारे बिंदु बनाते हुए चला जाओ। लास्ट में देखते हैं 10 कीमत पर कितनी मांग है, 4, तो हम यहाँ पे लगभग 3 के थोड़ा आगे। अब आप बोलेंगे कि यहाँ 19 के लिए स्केल नहीं दिख रहा, 19 कहाँ आएगा, ये 18 के एक बिंदु आगे रख लो। 4 कहाँ आएगा, ये 3 के थोड़ा सा आगे रख लीजिए, और आगे बढ़े, ऊपर मिलाएं 10 को, तो जैसे ये मिला तो यहाँ पे एक बिंदु बना लें, और जहां जहां बिंदु मिले उसको एक लाइन खींच के आप कर्व कर लें, तो आपका ग्राफ परफेक्टली बन जाएगा। बस ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप ज्यादा है, ये थोड़ा सा स्केल सही बनेंगे ना आपके, तो अगर स्केल परफेक्टली आप स्केल से बनाएंगे 1 1 सेंटीमीटर की दूरी में, तो आपका कर्व बिल्कुल सही बनेगा। और आप ये समझ चुके होंगे मार्केट डिमांड भी। अब हम समझते हैं मांग के विभिन्न फैक्टर कौन से हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। तो फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, तो हम देखते हैं कि जो आपने वहां पे लिखा था PX PY, जिसका आपने एब्रीविएशन को इलस्ट्रेट किया था, वही यहाँ पे फैक्टर के रूप में आएंगे। तो हम उसको देखते हुए चलते हैं, और आप यहाँ इसको लैंग्वेज में लिखा हुआ पाएंगे, और आपको ये फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसिंग डिमांड ये आपने शब्दों में, वर्ड में ही बताने होंगे। सो लेट अस
try to understand factor that influencing demand. Utility of demand, it affects the demand. Utility of a commodity it is a factor which influence the demand. The second one is income level. Income level also a factor that influence the demand. The third one is distribution of wealth. Distribution of wealth also affects the demand. The price of a commodity also influence or affects the demand. The price of a substitute commodity also affects the influence the demand. Fashion, taste, extra, these also are the factor which influence the demand. Expectation of changes of a price of a commodity in future, it also affects the demand. So now we will understand the different subtopic of demand. It is different important concept of demand. So we will take from inferior good. What are inferior goods? हिंदी में इसको कहते हैं हीन वस्तु. सो व्हाट इज इंफीरियर गुड? हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं विभिन्न महत्वपूर्ण विषय उपविषय जो डिमांड से रिलेशन है. फिर मैं अगेन दोबारा बोल दूं, लॉ ऑफ डिमांड अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके अंदर कई विषय उपविषय और आएंगे, और ऐसे ही लॉ ऑफ इलास्टिसिटी को के विषय उपविषय कई हैं. यहाँ पे हम केवल पढ़ रहे हैं डिमांड और उसके विषय उपविषय जो इससे संबंधित हैं. पहला जो है दिस इज इंफीरियर गुड. व्हाट इज इंफीरियर गुड? It is inferior good are those whom consumer thinks of a very low quality. Example, low quality of clothes, low quality of grains. तो inferior good होता है वह वस्तु जिसको हम हीन दृष्टि से देखते हैं, जो कि हम जिसको बहुत लो क्वालिटी का समझते हैं, जैसे कि मोटा कपड़ा और मोटा अनाज. तो आपने देखा होगा मोटा कपड़ा आपने देखा होगा, और जैसे ग्रेन्स जो आप अधिक पैसा होने पर कम खरीदते हैं, यानी कि तो ये लो क्वालिटी के अनाज, ये सब इंफीरियर गुड कहलाते हैं. द नेक्स्ट वन इज गिफिन पैराडॉक्स. इट सेज दैट गिफिन पैराडॉक्स सेज दैट इफ इनकम ऑफ ए कंज्यूमर इंक्रीजेज, वन साइड it is increasing the income of consumer, the income of consumer is going on increasing. What happens then he goes to buy a costly quality good. He is not purchasing the goods which are cheaper, but he is purchasing costly quality goods instead to buy cheaper low quality goods. इट इज नोन एज गिफिन पैराडॉक्स. हम गिफिन पैराडॉक्स में देखते हैं कि एक व्यक्ति की आय बढ़ने पर, जब उपभोक्ता की आय बढ़ने पर क्या होता है, जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वह ये नहीं देख रहा है बाजार में कि सस्ती कौन सी चीज है, महंगी कौन सी है, क्योंकि हम अधिकतर क्या करते हैं, सस्ती चीज को ज्यादा खरीदते हैं और महंगी चीज को कम खरीदते हैं. पर इस गिफिन पैराडॉक्स में क्या होता है कि उपभोक्ता की आय जब बढ़ती है, वह क्या जाता है, वह महंगी चीज वस्तु खरीदता है, इंफीरियर की बजाय गुड क्वालिटी वस्तु खरीद रहा है और कॉस्टली वस्तु खरीद रहा है. किसकी बजाय कि वह सस्ती और लो क्वालिटी गुड की बजाय वह किसे खरीद रहा है, महंगी और क्वालिटी वाली वस्तुओं को. तो ये उपभोक्ता की जब आय बढ़ती है, आय बढ़ गई, उसके पास पैसा ज्यादा आ गया, तो वह महंगी और अच्छी क्वालिटी की चीज खरीद रहा है, किसकी बजाय, सस्ती और लो क्वालिटी की वस्तु की बजाय. अब हम देखते हैं नई टॉपिक, द सब्स्टिट्यूट गुड्स. व्हाट आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स? द गुड्स विच वी कैन यूज इजीली इन वन प्लेस टू अनदर. ऐसी वस्तुएं जिनका हम इस्तेमाल आसानी से एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का कर लेते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है, उदाहरण है टी एंड कॉफी. द गुड्स विच वी कैन यूज इजीली इन वन प्लेस टू अनदर, एग्जाम्पल टी एंड कॉफी. सो दीज आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स. द नेक्स्ट वन इज कंप्लीमेंट्री गुड्स. पूरक वस्तुएं क्या हैं? व्हाट आर द कंप्लीमेंट्री गुड्स? पूरक वस्तुएं. द गुड्स विच वी बाय टुगेदर
we buy it together. And the goods which we buy together for a definite purpose. The goods which we buy together for a definite person. Example, स्कूटर एंड पेट्रोल. दीज कंप्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं वह वस्तुएं हैं, कंप्लीमेंट्री वस्तु वह वस्तुएं हैं जो कि हम इकट्ठा ही खरीदते हैं एक निश्चित उद्देश्य के लिए. जिन वस्तुओं को इकट्ठा खरीदा जाता है, द गुड्स विच वी बाय टुगेदर फॉर ए डेफिनेट पर्पस. हमारे पास एक उद्देश्य है जिसके लिए हम वस्तुओं को इकट्ठा ही खरीद रहे हैं. मान लें हमारा उद्देश्य है कि हम स्कूटर खरीदें. अब स्कूटर खरीदेंगे तो साथ में पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा. तो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. द नेक्स्ट वन इज जॉइंट डिमांड. व्हेन द गुड्स आर डिमांडेड इन ए सेम टाइम फॉर ए डेफिनेट पर्पस, देन द डिमांड इज ए जॉइंट डिमांड. एग्जाम्पल, बैट एंड बॉल. The joint demand is that when the goods are demanded in the same time for a definite purpose, then the demand is a joint demand. Example, bat and ball. मान लिया जाए जॉइंट डिमांड क्या है, संयुक्त मांग क्या है वस्तु की. वह जॉइंट डिमांड वह है कि जब हमने वस्तुएं मांगी एक ही समय में, एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए, एक ही समय निश्चित समय हम दोनों चीजें इकट्ठा ही खरीद रहे हैं. कंप्लीमेंट्री गुड्स में हम इकट्ठा नहीं खरीदते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है. स्कूटर खरीद के लिए आए तो पेट्रोल उसमें पड़ा हुआ है तो पेट्रोल फिर खरीद लेंगे. लेकिन यहाँ पे इकट्ठा ही मांग ले रहा है एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए, एक ही समय में वह निश्चित पर्पस पूरा करने के लिए एक साथ मांग कर रहा है. यह संयुक्त मांग है. जैसे बैट बल्ला, अगर उसने क्रिकेट खेलना है तो वो बैट भी खरीद रहा है तो तुरंत बॉल भी ले रहा है, बैट भी ले रहा है और बॉल भी ले रहा है. तो यह क्या है, संयुक्त मांग है. अब हम पढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय, उपविषय डिमांड का. इट इज डेराइव्ड डिमांड. व्हाट इज डेराइव्ड डिमांड? व्हेन ए डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ अदर्स कमोडिटी. व्हेन ए डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, वी आर डिमांडिंग ए कमोडिटी, it increases the demand of other commodity, then it is known as derived demand. Example, if a demand of cotton cloth increases, then it will increase the demand of raw material of cotton. मान लिया जाए क्या है derived demand? व्युत्पन्न मांग कहते हैं हिंदी में इसे, व्युत्पन्न मांग. और derived demand क्या है कि जब हम डिमांड कर रहे हैं एक कमोडिटी की तो यह इंक्रीज कर देता है अन्य वस्तु की मांग को भी. अगर हम किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं उससे अन्य वस्तु की मांग भी उत्पन्न हो जाती है, तो ये डेराइव्ड डिमांड है. कि मान लिया जाए उदाहरण के तौर पर हम कॉटन क्लोथ की मांग कर रहे हैं तो उससे किसकी मांग भी बढ़ जाएगी, कपास की मांग भी बढ़ जाएगी, जो रॉ मटेरियल है कॉटन का उसकी मांग भी बढ़ जाएगी. इस तरह से यह डेराइव्ड डिमांड है. अब हम पढ़ते हैं एक और कंसेप्ट उपविषय डिमांड का, दैट इज यूनाइटेड डिमांड. और क्या होती है ये? व्हेन ए सिंगल कमोडिटी डिमांडेड फॉर ए डिफरेंट पर्पस. एक ही वस्तु की जब हम मांग कर रहे हैं डिफरेंट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, देन इट इज नोन एज यूनाइटेड डिमांड. एग्जाम्पल, डिमांड ऑफ ए मिल्क इज फॉर टी. यू आर डिमांडिंग a milk for tea, you are demanding a milk for drinking, you are demanding a milk for curd, you are demanding a milk for cheese. So you demanded a single commodity for different purposes. तो यूनाइटेड डिमांड क्या है? जब हम एक ही वस्तु का जो मांग है वो कई उद्देश्यों के लिए मांग लेते हैं. एक ही वस्तु को मांग रहे हैं लेकिन कई उद्देश्य पूरा करने हैं उससे. जैसे हम घर में दूध मंगा रहे हैं तो वह दूध किसके लिए मंगा रहे हैं? हमने चाय भी बनानी है, हमने पीना भी है, हमने दही भी बनाना है, हमने उससे चीज भी बनाना है. तो यह सब क्या है? हम एक ही वस्तु की मांग कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं. तो that is united demand. So what is united demand? When a single commodity demanded for a different purpose, then it is known as the united demand. Example, demand of a milk is for tea, for drinking, for curd, for cheese, etc. So here I have completed my video. So if you like it, please subscribe and like my channel. Thank you.